کانوں سے ٹکرائے تو وہیں کھڑے ہو گئے، سنتے رہے اور جب نبی علیہ السلام یہاں تک پہنچے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں کہا مَا أَشْعَرَهُ، معاذ اللہ کتنے بڑے شاعر ہیں، فوراً نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تم ایک دم حیران ہو کہ میری بات کیسے سن لی؟ میں نے کہا کہ ماں اسحرہ، کتنے بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ کہ میرے دل کی بات سن لی۔ اگلا جملہ نبی علیہ السلام نے پڑھا وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آیت اور سنتا تو میں سجدے میں گر جاتا، میں فوراً وہاں سے چلا آیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، یہی تو وجہ ہے کہ قرآن نے چیلنج کیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے انسان اور جنات سارے جمع ہو جاؤ، قرآن جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ کسی میں طاقت اور جرأت نہیں تھی کہ قرآن کا مقابلہ کر سکتا۔ قرآن نے پھر چیلنج کیا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 سورتیں بنا کے لے آؤ۔ کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا۔ قرآن نے پھر دوبارہ چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ تب بھی کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ قرآن نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، قرآن جیسی ایک بات بنا کے لے آؤ، لیکن سارے لوگ عاجز تھے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعد میں بھی بڑی کوششیں ہوئی۔ ابن مقفع ایک ایرانی ادیب ہے، عربی پہ بڑی کتابیں لکھی، لوگوں نے اس کو کہا کہ قرآن ایک چیلنج کرتا ہے، آتش پرست تھا، تم قرآن کا چیلنج کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اتنے بڑے ادیب ہو، تم ایسا کرو کہ 1 سال کے لیے تمہارا سارا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، تم ایک کمرے میں بند ہو جاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن جیسا چند کلام بنا کے لے آؤ۔ اس نے کہا چلو کوشش کرتا، پورا سال محنت کرتا ہے اور سال کے بعد باہر نکلتا ہے کہ میں نے چند ایسی سطریں لکھی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ خود لکھتا ہے کہ میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں، 1 سال کی میری محنت ہے، اور باہر نکلتا ہوں تو آگے گھر میں ایک کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اس کھڑکی میں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی ہوتی ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی ایسی صورت، ایسی آیت ہے جس کی 19 الفاظ ہیں اور 21 قسم کی فصاحت و بلاغت اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کی سب سے فصیح و بلیغ آیت۔ کہتے جب یہ آیت میرے کانوں میں سنی، ایک دم میں نے چیخ ماری واہ اسفا ویحک، بربادی ہو جائے، اس چھوٹی سی بچی نے ایک آیت پڑھ کر میرے پورے سال کی محنت ضائع کر دی۔ وہیں پہ اس کاغذ کو پھاڑا اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ آج کے دور کی بات بتاؤں آپ کو، فنکل ایک انگریز ادیب ہے، بڑی عربی میں مہارت حاصل کی، اور وہ کہتا تھا کہ میں کسی کی عربی کو مانتا ہوں تو ایک شخص ہے مصری ادیب۔ الحمدللہ نعت خان صاحب بھی تشریف لے آئے، مفتی سعید صاحب تشریف لے آئے انشاءاللہ، تو میری بات کے بعد آپ مفتی نعت خان کی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو فنکل ایک بڑا ادیب انگریز کہنے لگا اگر میں کسی کی عربی کو مانتا ہوں تو وہ مصر کا ادیب ہے، ادیب کامل، اس کی عربی کو میں مانتا ہوں۔ اس سے ملاقات ہوگی، کہنے لگا کہ ادیب کامل آپ اتنے بڑے علامہ ہیں کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی انسان نہیں بنا سکتا؟ ادیب کامل نے کہا کہ آؤ میں تمہاری غلط فہمی دور کرتا ہوں، اپنے ساتھ 10 عرب کے بڑے ادیب اکٹھے کر لیے۔ اس نے اکٹھے کر لیے، کہنے لگا میں تمہیں ایک تعبیر بتاتا ہوں، تم اس جیسی تعبیر بنانے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے یہ کہنا ہو کہ جہنم بہت بڑی ہے، جہنم بہت وسیع ہے، اس
इसको कैसे कहोगे? उसने बड़ी ताबीरात लिखी कि जहन्नम इतनी वसी है कि ज़मीन और आसमान उसके अंदर समा जाए, जहन्नम इतनी वसी है, इतनी गहरी है। अब अदीब कामिल ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में जहन्नम की वसाअत को बयान करते हैं, जरा कुरान का अंदाज तो चेक करें। यौमा नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। कोई तर्जुमा इसका नहीं है, सिर्फ आपको तर्जुमा बता देता हूँ कि अल्लाह फरमाते जब मैं अरबों इंसानों को जहन्नम में डाल दूंगा तो मैं जहन्नम को कहूँगा हल इम्तलअति, क्या तू भर गई है, क्या तेरा पेट भर गया है? व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, वो कहेगी अभी तो बहुत जगह बाकी है। तो ये कुरान का उसलूब है। तो मोहतरम सामीन, इस कुरान की अज़मत को हम समझें। कुरान की अज़मत क्या है कि ये अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह की ज़ात से निकला है। और अल्लाह फरमाते हैं कि कोई इंसान अगर कुर्ब हासिल करना चाहता है तो उस चीज़ से ज़्यादा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता जो चीज़ अल्लाह की ज़ात से निकली है। यानी एक एक हर्फ को, एक एक लफ्ज़ का अल्लाह ने तकल्लुम किया, अल्लाह ने कलाम किया। और जब वो अल्फाज हम अपने सीने में लेके जाते हैं तो अंदर दिल की सफाई होती है, फिर दिल मुनव्वर होता है, क्योंकि वो कलिमात हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बोला है। बाकी जितनी भी आसमानी किताबें हैं हम उनको अल्लाह का कलाम नहीं कहते, वो अल्लाह की किताब है। इसी वजह से तो तहरीफात हो गई, वो तो फरिश्तों से लिखवा के अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले की गई, लेकिन कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, ये तो अल्लाह की ज़ात से निकला। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन पर चंद लोग मेरे खास घर के लोग हैं। पूछा गया नबी अलैहिस्सलाम से वो कौन लोग हैं? फरमाया कि कुरान वाले, अहले कुरान, जो मेरे खास घर के लोग हैं, इनको मैं खास तरीके से नवाज़ूंगा। आज तो हमें लगता है ना कि शायद ये कुरान पाक पढ़ना पढ़ाना पता नहीं ये क्या एक्टिविटी है, ये उस दिन पता चलेगा जब अल्लाह तबारक व तआला हाफ़िज़ कुरान को बुलाएंगे। आप जरा तसव्वुर करें, मैदान हशर का वो दिन जो 50,000 साल का होगा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा, ज़मीन तांबे की तरह सुर्ख होगी, और परेशानी कितनी होगी। यौमा यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। बाप बेटे से भाग रहा, माँ बेटी से भाग रहा, इंसान पसीने के अंदर शराबोर, कोई सर तक पसीने में, कोई पेशानी तक पसीने में, कोई कंधों तक पसीने में, और अफरा तफरी में हर इंसान इधर उधर भाग रहा। यौमा यकूनु अन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश। और अल्लाह का गुस्सा लन यग़ज़िबा क़ब्लहु वला बअदहु अबदा, ना आज से पहले ऐसा गुस्सा आया, ना आज के बाद ऐसा गुस्सा आएगा। उस दिन जब एजाज होगा हाफ़िज़ कुरान का, अल्लाह उसको बुलाएगा, हाफ़िज़ कुरान को पेश कर। और सबसे पहले एजाज होगा हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन का। अलबत्ता वालिदातु ताजन यौमल क़ियामह, वालिद और वालिदा के सरों पे ताज रखे जा रहे हैं सारी इंसानियत के सामने। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो ताज दुनिया में आ जाए तो सूरज की रोशनी उसके सामने मांद पड़ जाए। अब उनको ये एजाज़ नहीं है। फिर हाफ़िज़ कुरान को अल्लाह बुलाएंगे, इक़रा वत्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आख़िरि आयतिन तक़रा। हाफ़िज़ कुरान आओ, कुरान की एक एक आयत पढ़ते जाओ, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ते जाओ, और ऐसे ही आराम आराम से पढ़ो जैसे दुनिया में आराम से पढ़ते थे। जहाँ पे आखिरी आयत पढ़ोगी वो तुम्हारा मकाम होगा। उस दिन पता चलेगा कि हाफ़िज़ कुरान की इज्जत क्या है। उनके वालिदैन ने जो मेहनत की, उसकी मेहनत का सिला मैदान हशर में सारी कायनात देखेगी। अब जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह फिर बुलाएंगे हाफ़िज़ कुरान, जाओ अपनी मर्जी से 10 ऐसे लोगों के सरों पे हाथ रखो जिनसे तुम्हें प्यार है। इसलिए हाफ़िज़ कुरान से प्यार किया करो। ये क़यामत के दिन हमारे सिफारिशी बनेंगे 10 ऐसे लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान के कहने पर उनको जन्नत में दाखिल फरमा देंगी। ये वो एजाज़ है जो अल्लाह ताला अता करेगा। और ये एजाज़ कब मिलेगा? अब जब हम कुरान की हुकूक अदा करें। कुरान की हुकूक क्या है? क्योंकि कुरान से बढ़ के हमारे साथ वफा करने वाला कोई
हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? कब्र का मसला। मौत आएगी पता नहीं क्या होगा, कब्र की अंधेरी रात, कब्र की वहशत, तारीकी, और ये मसला कुरान पाक 5 मिनट के अंदर हल करता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें एक सूरत बताऊं, 30 आयतों की सूरत है, और क्या खूबसूरत सूरत है, क्या वफा करने वाली सूरत है। जो इंसान इसको रात को हमेशा पढ़ता है, ये उसके लिए अल्लाह से झगड़ा करती है। मुर्दा कब्र में रखा जाता है, परिंदे की शक्ल बनाकर मुर्दे के ऊपर लिपट जाता है। क्या बारी ताला या तो इसकी बख्शिश कर दे या मुझे अपने कलाम पाक से लिखा। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह सिफारिश मानते हैं। कौन सी सूरत है? सूरतुल मुल्क, 29वें सिपारे की पहली सूरत। ये कुरान वफा करता है। खूबसूरत इंसान की शक्ल में कब्र में हमारा दिल बहलाएगा। तो लेकिन कुरान का भी तो हमने हक अदा करना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए सिफारिश करे, कुरान के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका। कुरान या तो आपके हक में सिफारिश करेगा या हमारे खिलाफ अल्लाह को शिकायत करेगा। अगर हमारे हक में सिफारिश करना है तो कुरान के हुकूक अदा करें। पहला हक क्या है? कुरान पर ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका ईमान है, अल्लाह का कलाम है, क़यामत तक रहने वाला मौजूदा है, ला रैब फीह, ऐसा कलाम है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। दुनिया का कोई ऐसा मुसन्निफ नहीं, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो अपने शुरू में लिखे ऐसी किताब है जिसमें कोई शक व शुबा, किसी गलती का इम्कान नहीं। ये अल्लाह ने लिखा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है कोई शक व शुबा होती हो ही नहीं सकती। तो पहला हक क्या है? कुरान पर ईमान लाना। दूसरा हक क्या है? कुरान पाक की तिलावत, और ऐसे कुरान पढ़ना जैसे पढ़ने का हक है। बड़ा अफसोस होता है जब हम इस चीज़ देखते हैं कि बच्चों को हम चाहते हैं कि इंग्लिश ऐसे बोलें जैसे अंग्रेज बोलते हैं। इसके लिए कितनी तकलीफ बर्दाश्त की जाती है, कितना पैसा लगाया जाता है। ट्रॉबल्स में दाखिल कराओ, डीकन हाउस में दाखिल कराओ, सिटी में दाखिल कराओ। क्यों? ताकि बच्चा मेरा अंग्रेजी ऐसे बोले जैसे अंग्रेज बोलते हैं। मना नहीं है, करवाएं, अच्छी से अच्छी दुनिया की तालीम करवाएं, लेकिन कभी ये भी सोचा कि बच्चा कुरान ऐसा पढ़े जैसे आका रिसालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते, जैसे कुरान पाक उतरा था। इंग्लिश गलत बोलने से मीनिंग में फर्क नहीं पड़ता। बच्चा एप्पल कह दे या एप्पल कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुरान को सही ना पढ़ा तो मतलब तब्दील हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन तमाम जहानों का रब है। आप पढ़ते हैं रब्बिल आलमीन, आलमीन अलम से निकला है, तमाम दुख और परेशानियों का रब है। अब अल्लाह की तारीफ तो नहीं हो रही। कुरान पाक ऐसे पढ़े जैसे पढ़ने का हक है। इस पर मेहनत कराना, बच्चे के ऊपर अच्छे अच्छे कारियों से कुरान की तिलावत करवाना उसको, ताकि बच्चा कुरान से पढ़े। और जब सही कुरान पढ़ेंगे फिर कुरान का नूर हासिल होगा। प्यारा आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? उतलुल कुरान वब्का, कुरान की जब तिलावत करो तो तुम्हें रोना आना चाहिए। फ़इल्लम तकुन, रोना नहीं आ रहा तो फतबाकौ, रोने की शक्ल बना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास शख्स आया कि मैं कुरान पढ़ता हूँ, रोना नहीं आ रहा। फरमाया कि अपने मुक़द्दर पे रोया करो। कि दिल इतना सख्त हो गया। मोमिन की शान तो ये थी, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि मोमिन के सामने कुरान पढ़ा जाए तो दिल लरज़ जाता है, दिल के जंग दूर होते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला को बैठे हैं, बहन कुरान पढ़ रही है और जंग किसकी दूर हो रही है? उमर रज़ी अल्लाह तआला। तो दूसरा हक क्या है कि कुरान पाक को खूबसूरत